رحمان شامی صاحب، آپ کے نزدیک یہ ایک ذاتی مسئلہ یا پھر قومی مسئلہ؟ دیکھیے، یہ جذباتی طور پر تو ایک قومی مسئلہ تھا اور قانونی طور پر یہ ایک ذاتی مسئلہ تھا۔ اب قانونی طور پر تو جو اس کے ورثہ ہیں مقتولین کے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں اپنے قاتل کو، اس سے دیت وصول کر سکتے ہیں یا پھر قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا قانون جو ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جذباتی طور پر یہ معاملہ تھا کہ پوری قوم کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے تھے اور لوگ چاہ رہے تھے اس کو سخت سزا ملے، اور اس حوالے سے ایک قومی مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن اگر آپ قانون کی بات کریں گے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا، اور جذبات کی بات کریں گے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اور جو لواحقین ہیں وہ بھی ایک وقت میں جذبات کے تحت باتیں کر رہے تھے، اور اب انہوں نے قانون کے تحت کام کیا ہے۔ تو ہم اس پر رد عمل کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اس پر دکھ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس پر تھوڑا جذبات ہمارے جو ہیں ان کو بھی دھچکا پہنچا ہے، لیکن قانون جو ہے ان کو یہ حق دیتا تھا اور انہوں نے یہ حق استعمال کر لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ لیکن شامی صاحب، پھر یہ کہا جانا کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو ورثہ ہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کو فوری طور پہ امریکہ منتقل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیوں ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ اگر یہ ذاتی مسئلہ تصور کیا جائے، انہوں نے دیت جو ہے وہ لے لی اور اس کے بعد انہوں نے معافی دے دی، تو پھر مدعی سست اور گواہ چست والی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے تو شمائلہ کے ماموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب خودکشی کر لیں گے اجتماعی طور پر۔ تو شمائلہ کے ماموں جو ہیں وہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر مقتول کے وارث نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی حق ہے قانونی طور پر، اور نہ کس نے ان سے کچھ پوچھنا ہے، نہ ان سے لینا ہے، نہ دینا ہے۔ ایک بات تو یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لواحقین جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی دباؤ میں ہوں گے، اور اس وقت جو جذبات مشتعل ہیں ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، یا ہو سکتا ہے کسی سیف کسٹڈی میں ہوں یا کہیں وہ چھپ گئے ہوں، کیونکہ جذبات تو ایسے ہیں نا کہ کوئی شخص ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اب اس وقت جب تک کہ ہمارے سامنے یہ کھل کے بات نہ آئے، ہم اس بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ ان کا جو معافی نامہ ہے یا ان کا جو راضی نامہ ہے وہ عدالت میں پیش ہوا ہے، اور عدالت نے اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مہر لائی، یہ توثیق کی، تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر خوش اسلوبی سے یا خوش دلی سے شریک نہیں ہوئے؟ جب کوئی واضح شہادت ہمارے سامنے آئے گی تو اس وقت کہا جائے گا۔ لیکن چڑیاں تو اب کھیت چگ گئی ہیں، کہ چڑیاں تو اڑ گئی ہیں، اب وہ کھیت جو ہے وہ اپنی جگہ رہ گیا ہے، تو وہ چگ کے جا چکی۔ اچھا، پنجاب حکومت کا بھی آپ کو کوئی کردار اس میں دکھائی دیتا ہے، یا وہ بالکل پیچھے رہے اس معاملے میں اور انہوں نے جو ہے وہ تمام معاملہ عدالت پر ہی چھوڑ دیا؟ دیکھیے، حکومت کا کردار بھی یقیناً ہوگا، صوبائی حکومت کا بھی ہوگا، وفاقی حکومت کا بھی ہوگا، اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ جو مصلحتیں ہوتی ہیں وہ جذبات پر غالب آ جاتی ہیں، اور کوئی بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں حکومتیں جو ہیں وہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک وسیع تر تناظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جو چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، جو سمجھ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ایک دوسری اینڈ پہ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اسی لیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی تفصیلات کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اور میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتی، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اس معاملے کے کئی تہ در تہ پہلو ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر پہلو سے چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کوئی بڑا ایسا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور ان کے سامنے کوئی مجبوری ہوگی تو ہمیں ان کو بھی ایک کوئی شک کا فائدہ دینا چاہیے۔ لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کی شرکت کے بغیر یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ فی الحال لیں گے ایک بریک، جس کے بعد مزید خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ Transmission is brought to you by 14 دنوں میں میرے بال بنے مضبوط، اب دکھے یہاں وہاں نہیں، صرف یہاں۔ پینٹین۔ UBL اومنی، ہر پل آپ کے ساتھ۔ اب ہر پاکستانی کھولے گا اپنا خود کا بینک اکاؤنٹ UBL اومنی دکان میں۔
UBL ओमनी हर पल आपके साथ। मैं हूं चेहरा तुम्हारी ज़मीं का। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। Hey, what's up? Where are you? Hey, please have a seat. Sprite 3G 4 एक्शन में जी। मैं हूं जवाब सुनहरे ख्वाबों का। हायर LED टेलीविजन्स, हैरत अंगेज मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, अब नाकाबिले यकीन हकीकत। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। अब हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट UBL ओमनी दुकान में। UBL ओमनी अकाउंट से फायदा, छोटी मोटी बचत बहुत आसान। बस 100 रुपए डालें और UBL ओमनी दुकान में अकाउंट खुल गया। किसी भी UBL ओमनी दुकान से जब चाहे जितनी चाहे रकम निकाल ली और रोजाना कुछ न कुछ जमा कर दिया। अकाउंट खोलने की कोई चार्जेस नहीं और UBL ओमनी ATM कार्ड भी मिला। रकम हर वक्त UBL में महफूज और अपने मोबाइल फोन से जहां चाहा भिजवा भी दी। अकाउंट खोलना बहुत आसान। अपनी करीबी UBL ओमनी दुकान जाए, दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, आसान सा फॉर्म भरें और दस्तखत करें, तस्वीर खिंचवाएं, पक्की रसीद और SMS पे 8257 से इत्तला पाएं और खुल गया UBL ओमनी अकाउंट। तो फिर इंतजार कैसा? UBL ओमनी हर पल आपके साथ। Now you have the freedom of touch. Q मोबाइल के टच फोन सोप E900 के साथ अब जिंदगी में लाएं एक नया टच। टच वीडियो, टच म्यूजिक, टच कैमरा, कीप इन टच विद फ्रेंड्स। मेरे Q मोबाइल E900 टच फोन के साथ अब लाइफ का टच ही कुछ और है। Q मोबाइल सोप E900। मैं हूं चेहरा तुम्हारी ज़मीं का। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। UBL ओमनी हर पल आपके साथ। अब दिखे यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ। पैंटीन। वेलकम बैक। बात हो रही है रेमंड डेविस की, जिसे अदालती हुक्म पर आज रिहा कर दिया गया। लेकिन हलाक नौजवानों के लवाहिकीन ने इससे पहले कहा था कि वो खून बहा कबूल करने के बजाय मुलजिम को सजा दिलवाना चाहते हैं और उसे बैरून मुल्क जाने से रोका जाएगा। रेमंड की फायरिंग से हलाक मकतूल के भाई वसीम ने चंद रोज पहले ही कहा था कि उन्हें दियत या खून बहा कबूल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहता है कि मुलजिम को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अपने भाई का जो है खून के बदले खून और इंसाफ जो है ना वो लेने के लिए हम सड़कों पे आए हैं और मजीद हमें आना पड़ा तो हम आएंगे इंशाल्लाह। हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, ना ही कोई प्रेशर है और बाकी ये सब सिर्फ अफवाहें हैं कि हमें कोई ऑफर दी गई है या हमने कोई कबूल की है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो किसी ऐसे बंदे से मिलना भी नहीं चाहते कि जो इस तरह की हमें ऑफर कराए। रेमंड डेविस केस में मकतूलीन के वर्सा के वकील मुंसिफ एवान ने 14 मार्च को कहा था कि मुलजिम का नाम ECL में शामिल करने के लिए एक और दरखास्त दायर की जाएगी। हम इसके लिए अलग एक पिटीशन दायर करेंगे जिसमें जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं होगा
उसका ECL में नाम दायर करने की रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो जब तक फैसला न हो वो उसमें शामिल हो। मकतूलीन के बुरसा ने खूबा कबूल करके रेमंड डेविस को माफ कर दिया है, जो उनके साबका मौक़िफ़ की नफी है। तो ये तो मामला था मुल्क में होने वाले कत्ल का, लेकिन इसके अलावा भी आज एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है बैरून मुल्क होने वाले कत्ल की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से मुतालिक अहम फुटेजेस और तस्वीर जारी कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जारी तस्वीर और वीडियो में इमरान फारूक को घर जाते हुए दिखाया गया है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक इन तस्वीर से महसूस होता है कि उनका पीछा किया जा रहा था। तस्वीर में इमरान फारूक को एजवेयर अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन से घर आते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर उनके कत्ल से 10 मिनट पहले की हैं। अफसरान के मुताबिक महसूस होता है कि ग्रीन लेन के इलाके में 4 एशियाई निषाद उनकी निगरानी कर रहे थे। इमरान फारूक को गुज़िश्ता साल 16 सितंबर को लंदन में कत्ल कर दिया गया था और उन्हें कराची में 6 नवंबर को सुपुर्द खाक किया गया था। डॉक्टर इमरान फारूक APMSO के बानी अरकान में शामिल थे। लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के इल्जाम में शुमाली लंदन के इलाके कैमडन से एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। 34 साला मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो वस्ती लंदन का रिहायशी था। बाद में पुलिस ने 2 मजीद मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की। 1 अक्टूबर 2010 को स्कॉटलैंड यार्ड आला कत्ल चाकू तलाश करने में कामयाब हो गई थी। 6 अक्टूबर को डॉक्टर इमरान फारूक के वालिद और वालदा लंदन पहुंचे और 4 नवंबर को उनकी मैयत वुरसा के सुपुर्द कर दी गई। डॉक्टर इमरान फारूक 14 जून 1960 को कराची में पैदा हुए थे। ये तो एक डेवलपमेंट हुई। इससे पहले हम बात करते हैं रेमंड डेविस केस की, और जैसे कि हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने बताया कि तमाम मामला तो हल हो गए हैं, लेकिन कुछ सवालात अभी बाकी हैं। एक मसला इबादुर रहमान नामी शख्स का भी था, जो कि अमरीकी गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक हुआ था। इबादुर रहमान के भाई मशहूद अहमद इस वक्त समा की नुमाइंदा फरवा शमशाद के साथ मौजूद हैं। फरवा से हम बात करते हैं। फरवा, क्या कहना है इबादुर रहमान के भाई का? जी, इबादुर रहमान यहाँ पर हैं और प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रही हैं। कुछ जमातें उन्हीं में ये भी शामिल हैं, और इनका कहना है कि अगर जिस तरह से बात आ रही है कि दूसरे लोगों से राब्ता किया गया है, दूसरे घर वालों से राब्ता किया गया, इनका कहना है कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया और हम तो यहीं पर मौजूद हैं और हमें इंसाफ चाहिए। बाकी मैं इनसे आपकी बात करवाती हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इबादुर रहमान के भाई। जनाब, ये बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, ये जो तमाम मामला हुआ और रेमंड डेविस रिहा होकर चला गया पाकिस्तान से? सर, मुझे तो इस चीज का इल्म ही नहीं है। मैं तो इबादुर रहमान की शॉप पे ही बैठा था, उसकी शॉप चला रहा हूँ किसी तरीके से। ठीक है, हमें तो इतना दुख है, उसकी हर चीज है। अभी भी मैं उसकी शॉप ही चला रहा था तो साथ वालों ने बताया कि रेमंड डेविस छूट चुका है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने मेरी भी हर चीज चला रही है कि इन्होंने पैसे ले लिए, ये करे। हमें तो इस चीज का कभी इल्म ही नहीं है। मेरी वालदा घर रो पागल हो रही हैं। उन मीडिया वाले सब वहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनको परेशान भी हो रहे हैं। हर चीज हो रही है कि उन्होंने पैसे ले लिए। हमारे साथ तो अभी किसी ने राब्ते नहीं किया। ठीक है, मशहूद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। इबादुर रहमान के भाई मशहूद अहमद हमसे बात कर रहे थे और वो अब तक इस मामले से बेखबर हैं। दूसरी जानिब पीपल्स अमन कमेटी ने कराची में सरगर्मियां मुअत्तल करते हुए तमाम दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अजीज बलोच और हबीब बलोच ने लियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कमेटी में जराइम पेशा अनासिर नहीं है, जमहूरियत के गैर मुस्तहकम होने से बचाने के लिए कुर्बानी दी है। अमन कमेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मफाहमत की पॉलिसी और इसकी मफाहमत की अमीन शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हाथ मजबूत करते हुए ऐलान करती है कि आज से अभी से पीपल्स अमन कमेटी कराची के तमाम मामला को मुअत्तल करती है और इसके दफातर कराची समेत अंदरून सिंध और बलोचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत और बलोचिस्तान की क़यादत के सुपुर्द करती है। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब और गवर्नर साहब और CM साहब के इंशाल्लाह महकमे होंगे। जहाँ हमारी जरूरत पड़ी वहाँ जराइम पेशा है, वहाँ हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट का साथ देंगे। बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv और अब एक ब्रेक के बाद देख सकेंगे प्रोग्राम क्राइम सीन। देखते रहिए समा। देखिए यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पैंटीन। अब हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट UBL ओमनी दुकान में। UBL ओमनी अकाउंट से फायदा, छोटी मोटी बचत बहुत आसान। बस 100 रुपए डालें और UBL ओमनी दुकान में अकाउंट खुल गया।
किसी भी UBL ओमनी दुकान से जब चाहे जितनी चाहे रकम निकाल ली और रोजाना कुछ न कुछ जमा कर दिया। अकाउंट खोलने की कोई चार्जेस नहीं और UBL ओमनी ATM कार्ड भी मिला। रकम हर वक्त UBL में महफूज और अपने मोबाइल फोन से जहाँ चाहा भिजवा भी दी। अकाउंट खोलना बहुत आसान। अपनी करीबी UBL